Hello friends, welcome to Learnology. Today's topic of our discussion is another very important gland, that is pituitary gland. As you all know, pituitary gland is also called master gland. So let's get started with the lecture guys. The pituitary gland is a small projection about size of a pea seed, यानी एक मटर के दाने के बराबर pituitary gland का size होता है, which hangs from the base of the midbrain below hypothalamus as shown in figure 10.7. It is popularly called master gland. Only pituitary gland in our body which is popularly called as master gland. Why only pituitary gland is called master gland? A lot of glands are there in our body, but why only pituitary is called master gland? This is because it seems to control practically all other endocrine glands. ये सारे endocrine glands को practically control करने का काम करती है. Okay? Next, pituitary gland has two distinct lobes. Pituitary glands के दो distinct lobe होते हैं. Say this. Pituitary glands have two distinct lobe. This is posterior pituitary, anterior pituitary, intermediate lobe. Pituitary gland has two distinct lobe, the anterior pituitary and posterior pituitary. The entire pituitary gland weigh about 1/2 gram, यानी 0.5 ग्राम की pituitary gland होती है. Next, the front part of posterior pituitary is different from the rest of the lobe and is called intermediate lobe. यानी front part pituitary gland, posterior pituitary के front part को interior lobe बोलते हैं. Intermediate lobe, not interior lobe. It's intermediate lobe. The intermediate lobe is almost absent in humans, यानी humans में intermediate lobe जो pituitary gland का होता है वो absent होता है, but much larger and more functional in some lower animals. यानी ये जो हमारा intermediate lobe होता है pituitary gland में वो ह्यूमंस में तो एब्सेंट होता है लेकिन काफ़ी लार्ज साइज का होता है एंड बहुत ज़्यादा फंक्शनल होता है लोअर एनिमल्स में. नेक्स्ट आपको जो देखना है हॉर्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. देयर आर टू रीजंस, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है उसको देखेंगे. फर्स्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी. हार्मोन्स फ्रॉम anterior pituitary. Some important hormones produced by the anterior lobe of the pituitary gland are as follows. बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं anterior pituitary से. First is growth hormone GH is essential for normal growth as the name suggests. अगर growth hormone है तो वो growth के लिए ही responsible होगा या उसके लिए ही ज़रूरी होगा. It is also called somatotropin. growth hormone को हम somatotropin भी बोलते हैं. Somatic means body, tropic means stimulating, यानी body को stimulate करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ग्रोथ में ही पार्टिसिपेट करेगा. अब अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई यानी उसकी कमी हो गई तो क्या होगा वो देखते हैं. द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड स्टेज में अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, रिजल्ट्स इन डॉर्फिज्म. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट एक्चुअली डॉर्फिज्म इज? अ डॉर्फ दो फुल्ली डेवलप्ड रिटेन्स बॉडी प्रोपोर्शन ऑफ अ चाइल्ड. यानी अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई चाइल्डहुड में तो डॉर्फिज्म देखने को मिलेगा. अभी इस फिगर के थ्रू भी इसको बहुत अच्छे से समझेंगे. द ओवर सेक्रीशन इन चाइल्डहुड, और अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सेक्रीशन हो गया, जितनी की ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा सेक्रीशन हो गया, रिजल्ट्स इन जाइजेंटिज्म. व्हाट एक्चुअली जाइजेंटिज्म इज? द लॉन्ग बोन्स लेंथन बियॉन्ड नॉर्मल, यानी नॉर्मल जो बोन की लेंथ होगी उससे काफ़ी ज़्यादा लेंथ हो जाएगी एंड ह्यूमन जाइंट्स अप टू 2.7 मीटर्स इन हाइट आर प्रोड्यूस्ड, विच इज शोन इन फिगर 12.8. Say this everyone, very important. If oversecretion of growth hormone suddenly occurs in an adult, अगर oversecretion childhood में हो रहा था, say this everyone, अगर ओवर सेक्रीशन चाइल्डहुड में हो रहा था तो जाइजेंटिज्म देखने को मिल रहा था. व्हाट अबाउट अगर ओवर सेक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का एडल्ट में हो तब क्या होगा? देयर इज एन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बोन्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी इन द फेस पर, पर्टिकुलरली हम जॉस की अगर बात करते हैं, जबड़े की बात करते हैं, एंड इन द हैंड्स एंड फीट. द पर्सन डेवलप अ लार्ज नोज एंड थिक लिप्स. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्रोमेगाली. एक्रो मीन्स हाइट, एक्सट्रीमिटी, मेगाली मीन्स लार्ज. यहाँ पर आप फिगर देख रहे होगे. ये इफेक्ट ऑफ अ माल फंक्शनिंग पिट्यूटरी
ग्लैंड। ये जो आप बड़ा सा आदमी देख रहे हो, इसमें ग्रोथ हार्मोन का ओवर सेक्रीशन हो गया, यानी अ पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जाइजेंटिज्म, एंड ये छोटा सा जो आप पर्सन देख रहे हो डॉर्फिज्म, बोर्न अपन अंडर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट, अब ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ भी एंटीरियर पिट्यूटरी का पोर्शन बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करता है। सेकंड इज योर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट इज एब्रिविएटेड एज TSH, एज द नेम सजेस्ट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने थायराइड ग्लैंड को ही डिटेल्ड बेसिस पे पढ़ा था। मींस TSH जो हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, एंड अगर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने की बात हो रही है तो वो कौन से हार्मोन को रिलीज करेगा थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के बाद? थायरॉक्सिन। Activates thyroid to secrete thyroxine. Next, gonad stimulating gonadotropic hormones regulate the activities of testes and ovaries, यानी gonads की एक्टिविटी को क्लियर करेगा या गोनाड की एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगा। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट, ACTH का फुल फॉर्म भी क्लास 10th ICSE बोर्ड में पूछा जा चुका है, दैट इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल ग्लैंड मैंने इसी चैनल पे कवर किया है, देखिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे। द टर्म ट्रॉपिक हार्मोन रिफर्स टू सच हार्मोन्स विच स्टिमुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी ट्रॉपिक हार्मोन हम ऐसे हार्मोन्स को बोलेंगे जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने का काम करेंगे टू प्रोड्यूस देयर स्पेसिफिक हार्मोन सच एज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन सेक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी and also stimulate gonads to produce certain hormones. Tropic means influencing the activity of the named organs such as thyrotropic from thyroid, adrenocorticotropic from adrenal cortex. Next is your another lobe of pituitary, that is hormones from posterior pituitary. The posterior lobe of pituitary gland produces only two hormones, which is these two hormones are very important, named vasopressin, which is also called ADH, antidiuretic hormone, and oxytocin. वन बाय वन देखेंगे ADH का फंक्शन एंड ऑक्सीटोसिन का फंक्शन। फर्स्ट इज योर antidiuretic hormone, abbreviated as ADH, also called vasopressin, as the name suggests, vasopressin means ये कैसा वर्क करेगा कि ये जो हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमेन होता है ये उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, प्रेस कर देगा, मीन्स कंस्ट्रिक्ट कर देगा, यानी उसका जो ल्यूमेन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ल्यूमेन कम होगा तो उसी ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो करता है? ब्लड फ्लो करता है। एज अ रिजल्ट उसका जो ब्लड का प्रेशर होगा उस ब्लड वेसल्स में जो कंस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी राइज हो जाएगा। इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन द किडनी, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स, यानी जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो पानी की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है बिकॉज पानी की कमी हो रही है, ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन द किडनी, किडनी पर भी ये ADH वर्क करता है, इंक्रीजिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स, एंड किडनी ट्यूब्यूल से वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसे बढ़ा देता है। ये सारा कुछ एक्सक्रीशन का ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर है, एंड ये सारी चीज़ें मैंने इसी चैनल पे कवर की है, देखिएगा। डेफिशिएंसी ऑफ ADH, अगर ADH की डेफिशिएंसी हो गई कॉजेज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर डायबिटीज, कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस, इन विच यूरिनेशन इज फ्रीक्वेंट एंड कोपियस, कोपियस मीन्स होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में या प्रचुर मात्रा में, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन बिकम्स थर्स्टी। Next, a very important point, you have to remember it. Diabetes means passing out excessive amounts of urine, yani excessive amount of urine, that is what your diabetes. The two types of diabetes are in diabetes mellitus, the urine contains sugar caused due to insufficient insulin. ये जब मैंने पैनक्रियास कवर किया था, ये डायबिटीज़ मेलाइटस मैंने वहाँ पर आपको डिटेल में बताया था, वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है, देखिएगा। बट इन डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो कि ADH की डेफिशिएंसी से होता है, देयर इज नो शुगर इन यूरिन, यूरिन में शुगर नहीं होता है। इंसिपिड मीन्स टेस्टलेस, रेफरिंग टू द एब्सेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, एंड मेलाई मीन्स हनी और स्वीट। नेक्स्ट, सेकेंड इज योर ऑक्सीटोसिन। ग्रीक में इसका मतलब होता है शार्प, क्विक, टोकोस मीन्स चाइल्ड बर्थ, मीन्स ये हार्मोन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये
रिलीज होगा, जब चाइल्ड का बर्थ होगा। स्टिमुलेट्स विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस इन अ प्रेग्नेंट मदर में ये विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा यूट्रस का एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, लीडिंग टू बर्थ ऑफ द बेबी। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स मिल्क इजेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। This table is extremely important because in this table पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर पोर्शन से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, उनका क्या एक्शन है, वो चीज़ें गिवन है, एंड पोस्टीरियर पोर्शन से क्या रिलीज होता है, वो सारी चीज़ें गिवन है। प्लीज़ गो थ्रू दिस फ्लो चार्ट और यू कैन से टेबल, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। डेफिशिएंसी माइनस का साइन दिया गया है, एक्सेस प्लस का साइन दिया गया है। चाइल्डहुड में डॉर्फिज्म होगा अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हुई, एंड एक्सेस होगा तो चाइल्डहुड में जाइजेंटिज्म होगा, और एक्सेस हुआ तो एडल्ट में एक्रोमेगैली होगा। ये सारी चीज़ें हमने जस्ट अभी पढ़ा है, सिर्फ ट्यूबुलर फॉर्म में यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। एंड ये सेम एक आप टेबल पढ़ के जाओगे, बहुत चीज़ें, काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में प्रेजेंट रहेंगी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ गो थ्रू एवरीवन।